वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। Member with the consent of the honorable chairman only. Thank you. Question number 181, Sri V. Vijay Sai Reddy. Sir, according to Andhra Pradesh government, the dues under NREGA is approximately around 4,976 crores. The pending material component, according to the state government, is 76%. And in fact, the union government, in the reply, has clarified that the dues amount, the dues relating to material component is only 1,341 crores. Can the minister explain why is the delay in clearing the dues? And can the minister also explain why there is a disparity in clearing the material component that is due to Andhra Pradesh even after submission of all documents, even after submission of all the clarifications, and inspection has been conducted by the central government. Sir, voice of the opposition. Honorable Minister. महोदय, हरियाणा आंध्र प्रदेश को एक भी लेबर बजट में बकाया नहीं है। जहां तक इन्होंने कहा है कि मटेरियल का पैसा बाकी है, इसके अंदर वित्तीय अनुशासन और टेक्निकल प्रॉब्लम, विगत वर्ष ऑडिट रिपोर्ट तथा ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र का अनिवार्य होना, सोशल ऑडिट के रिपोर्ट और वसूली पर समुचित कार्रवाई का विवरण होना, हर जिले के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सूचित करना, जिला स्तर पर मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60-40 होना, सामग्री मद में बैंक खाता में ब्याज राशि में का केंद्र सरकार को वापसी, केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, नेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, केंद्रीय जांच दल का रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई का होना, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुशासन का अनुपालन का सुनिश्चित करना। कुछ राज्यों में मजदूरी, मैं आपके सामने आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई है। राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है। राज्य सरकार के द्वारा दी गई सूचना, जैसे ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई गई राशि और बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि आपस में मेल नहीं खाती, इस हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया। सामग्री मद में जिला स्तर पर 40% से अधिक खर्च। Second supplementary. Due to pandemic, Andhra Pradesh has seen reverse migration of labor from cities to rural areas, which has created additional demand for work under NREGA. Andhra Pradesh has issued thousands of job cards and created crucial assets like building, Anganwadi villages, village secretariat, Raitu Bharosa Kendras, etc. This has raised the cost of income by Andhra Pradesh. However, the central government has misconstrued the utilization of funds by Andhra Pradesh government by accusing the state government of Andhra Pradesh of inflating NREGA costs. It is not correct. Even though the center has inspected NREGA records and stated in the head of the state and found no discrepancies, absolutely no discrepancies. Can the minister explain as to on what basis the union government is making false allegations saying that cost has been inflated? Why center has not released the pending dues after inspecting NREGA records? उपसभापति महोदय, मैं आपसे पुनः कहूंगा कि जो वित्तीय अनुशासन, तकनीकी जो उसके प्रॉब्लम है, उसको देना। आंध्र को अभी तक Please go back to your हम seat. 45,800 में आना राज्यसभा के रूल प्रोसीजर के अनुरूप नहीं है।
प्लीज गो बैक। ये पूरे क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर को चलने दें। आप दूसरे मेंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, आप कभी दूसरे मेंबर्स किसी को राज्य डिवाइड कर रहे हैं। और आंध्र को भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जिस दिन जो आपसे परीक्षा मांगी गई है वो पूरा होने पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसे तुरंत श्री कनक मेहता राजेंद्र कुमार। I request the Honorable Minister, there are so many complaints with regard to the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh government. Honorable members cannot to come to other side. Please go to that side. Please. Members cannot come to other side. Please go back to your side. Please, I am telling you. Please go back to your side. Sir, I request the Honorable Minister, there are so many complaints from the Andhra Pradesh. The present government did not pay the amount which was the works under the already done by the Narega. Narega funds are also diverted by the central, by the state government and utilized some other purposes. After there are court proceedings also there. After the intervention of the court only, they made some payments. Subsequently, the government misused most of the Narega funds. Therefore, Please be brief. Brief. sir, I request the Honorable Minister, what steps you have taken in respect of diversion of funds and non-payment of the Narega funds to the contractors? Please sit down. Please be brief. Please. But whether such complaint is addressed and directed to see the payments to be made to the contractors. उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो उठाया है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी शिकायत आई नहीं। लेकिन जो मैंने कहा उन पर हम कार्रवाई के लिए उनको कागज दिया है। अगर इनके पास कोई ऐसी सूचना है तो ये लिखित मुझे दें, मैं कार्रवाई करूं। माननीय प्रसन्नाचार्य जी। प्रसन्नाचार्य। Minister, whether it is a fact that in some of the states, the minimum wage rate of that state is more than the wage rate of America. Go back to your side. Please go back to your side. It is one of the reasons why more laborers are interested towards the state projects than the Manrega projects. So I would like to know from the minister whether the government will consider to raise the Manrega at par with the state wage rate of the respective state. माननीय मंत्री जी। महोदय, ये राज्यों के द्वारा निर्धारित दर में ही हम उनके साथ करते हैं। 20% का दर अभी हमने बढ़ाने का काम किया था। ऑनरेबल एम थम्बीदुरई। ऑनरेबल एम थम्बीदुरई। Thank you, sir. I am thankful for the Honorable Prime Minister of India sanctioning more funds for Manrega program. At the same time, I request the Honorable Minister, because like Andhra Pradesh, many other states are requesting the funds to be allocated quickly for the implementing the program. What are the actions the government is going to take to fulfill Honorable Prime Minister's program, fully sanctioning the money for the state governments? Thank you. महोदय, माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए। अगर 13-14 तक देखा जाए, 6, 7 और 13-14 में, तो कुल श्रम सृजित दिवस था 1660.77 करोड़
और 14-15 से 21-22 एक में जेल में ना आए, अपने अपनी सीट पर जाए और इस साइड ना आए। मैं अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य से, प्लीज। 2,44.37 करोड़ अगर रिलीज की गई निधि 2,13,220 करोड़ था, वहीं 4,89,000 हमने ये 7 साल में देने का काम किया। और कई ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना काल में आपने देखा कि 389 करोड़ दिवस, दुनिया में इतना बड़ा कोई लेबर सपोर्ट का नहीं रहा, वो काम हमने करने का काम किया। केवल वही नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं जिसने जो पीढ़ी उनके साथ बात करके हमने पीडी दिवस मनाया, पर्सन डे दिवस। हमने उनके काम में पहले पंचायत में यूनिट था महोदय 60-40 का, हमने जिला किया। जिला इसलिए किया कि कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये मोदी जी ने समाज के अंदर, गांव के अंदर रोजगार को भी दिया, एसेट को भी दिया। अगर आप एक नजर देखेंगे, पहले महिलाओं की भागीदारी केवल 48% था, अभी 54.12% है। अगर नरेगा सॉफ्ट में आधार देखेंगे तो पहले 76 लाख था, अभी 11.33 करोड़ है। अभी बैंक में जो जा रहा है 99% लोगों को बैंक में जा रहा है पारदर्शिता के तहत। इसलिए मैं उपसभापति महोदय ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो पहले खातों में नहीं जाता था, अब सीधे खाते में जाता। पहले ग्राम पंचायतों में 22 से 29 रजिस्टर होते थे, अब केवल 7 रजिस्टर होते हैं। ये कृषि कार्य में पहले 49% था, अभी 69% हम कृषि कार्यों में लगाए हैं। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां पहले केवल 17 था, अभी 61 है। और मैं इतना ही कहूंगा, संक्षिप्त जवाब दे, संक्षिप्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 इंदु बालाजी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री इंदु बालाजी, पुष्पा गांगुली जी। ये क्वेश्चन माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। इफ योर क्वेश्चन 82 हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट, हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये जनरल एक प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश प्लीज। क्वेश्चन नंबर 183 श्री प्रकाश जावड़ेकर। 83 माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, मैं एक सदस्य हूं, मैं लोकतंत्र के तरीके से सवाल पूछ रहा हूं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल पूछे। ये अपोजिशन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये अपोजिशन है सवाल पूछे कि जो हत्या कर रही है। सवाल पूछे। मेरा सवाल है कि 2014 में 14 के पहले जिस गति से नेशनल हाईवेज बनते थे, उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद। तो मेरा सवाल यह है कि 2014 के पहले ये गति कम क्यों थी और अब अगर बढ़ी है तो मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है, गडकरी जी ने क्या किया है कि ये गति बढ़ी है? इसका मुझे जवाब चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी के जवाब के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड तो नहीं जा रही है। हमारी पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और 11.7 किलोमीटर पर डे आई थी और काफी
थे। करीब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई, अब करीब 406 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी, वो स्टॉल प्रोजेक्ट थे, वो बंद पड़े थे। प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, इसका कारण लैंड एक्विजिशन, उसके बाद हम कुछ केसेस में कोर्ट में गए थे, कुछ जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कुछ जगह लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे। हमने इन सब का रिव्यू किया और मुझे सदन में बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया और सब प्रोजेक्ट फिर से शुरू किए। और आज हमारी जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर पर डे तक पहुंची है और इस साल मेरा विश्वास है कि वो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड इसमें होगी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस समय मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन रोड का ये हिंदुस्तान में हो रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दूसरा ऐसा है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलापुर बीजापुर सेक्शन में 1 लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में हुआ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। तो इस बार काफी बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और हमारी सरकार और राष्ट्रीय महामार्ग पहले 91,287 किलोमीटर था, 1,40,937 किलोमीटर, यानी 55% इंक्रीज हुआ है। और गति शक्ति और भारतमाला में 2 लाख किलोमीटर तक और आगे जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिका के बराबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड के बराबर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग बनेंगे, ये मैं विश्वास के से सदन को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री सर, सेकंड सप्लीमेंट्री पूछने के लिए जो सदन में स्थिति है, सेकंड सप्लीमेंट्री मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। लेकिन सर, जिन्होंने शोर शराबा करके हाउस को बाधित किया, सप्लीमेंट्री नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने माफी मांगने के बजाय वो ये शोर शराबा कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री माफी नहीं मांग रहे। आप सप्लीमेंट्री पूछे तो मैं मांग करता हूँ कि आप सभी जो वेल में है, इन्होंने माफी मांगना चाहिए। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि लेह के पास या ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स पड़े थे या कुछ नए सिरे से लिए गए हैं, उन्होंने ये जो काम पिछले 7 साल में नेशनल हाईवे ने ऐसे क्रिटिकल लिंक्स जो बनाए हैं, उसको भी देश को संज्ञान होना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं मंत्री विस्तार से इसका जवाब दे। धन्यवाद। लेकिन ऑपोजिशन धन्यवाद, माफी मांगिए। माननीय मंत्री जी आपका जवाब जाए प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं बताना चाहूंगा कि लद्दाख और लेह से शुरुआत होने के बाद हमने एक जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे और इसका 4 बार टेंडर हुआ था और टेंडर में इसकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए थी, पर हमने विशेष प्रयास करके इस टनल को 7,000 करोड़ रुपए की बचत की, ऐसा बताया। और इसका काम जोरों में शुरू है। इसके काम के लिए जो पीरियड था वो 3.5 साल का था, पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, रात दिन अभी वहाँ -1 डिग्री पर लगातार अंदर में 1,000 मजदूर अंदर जाकर टनल में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 के पहले मैंने उनको कहा कि 2024 के पहले इसको पूरा करेंगे, ये टनल पूरी हो जाएगी। इसको आगे आने के बाद एक झेलपुर टनल है, उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। आने वाले 3 महीने में हम उसको भी पूरा करेंगे। फिर लद्दाख लेह से इसके कारण 6 घंटा समय बचेगा। उसके बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से फिर डायरेक्ट दिल्ली से कटरा ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा।
और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और ये जो दिल्ली से आने के बाद हाईवे मुंबई जाएगा तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई होगा और दिल्ली से देहरादून ये 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। पूरा इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और 2 साल के अंदर ये काम पूरे होंगे, ये मैं विश्वास के साथ सदन को बता रहा हूँ। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारा मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। ये हाईवे भी बन गया है। तो एक प्रकार से पूरे देश में, चाहे दिल्ली से बंगलोर से चेन्नई तक हो, चाहे हैदराबाद से चेन्नई तक हो, ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। और ग्रीन नेशनल हाईवे जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये कम से कम हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें टोटल लेंथ जो है वो करीब 8000 किलोमीटर है और इससे सीधा डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सिस कंट्रोल भी हो जाएगा और निश्चित रूप से इसमें काफ़ी बड़ा परिणाम आएगा। और मेरा विश्वास है कि ये 26 ग्रीन हाईवे देश के पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम होगा, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे और रोड के कारण विकास होगा। मैं अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो बार बार मैं अपने ध्यान में रखता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसी बात से हिंदुस्तान भी समृद्ध, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, उसमें 110 लाख करोड़ का काम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। 100 एयरपोर्ट्स बने हैं, रेलवे में काफी मेट्रो के काम हो रहे हैं और ये देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के प्रथम 5 देशों के पंक्ति में पहुंचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर। Thank you sir for giving me this opportunity to ask a supplementary question. सर, आदरणीय मंत्री जी से की जितनी भी तारीफ की जाए, मैं पिछले 22 साल से देख रहा हूँ उनको किस तरह से उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल नक्शा चेंज कर दिया, पहले महाराष्ट्र में, अब पूरे देश में। तो उनकी जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो उन्होंने बहुत सारे जो प्रॉब्लम वाले थे प्रोजेक्ट उसको ख़त्म किया और उन्होंने हैम प्रोजेक्ट शुरू किया, जो उसको इनिशिएटिव सरकार को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये इसमें थोड़ी गति कम आई है, क्या उसमें तेजी आएगी? अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सम्मान्य सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि कोविड पीरियड के बावजूद हमारे सरकार ने इस क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। हमारी स्पीड बढ़ी नहीं है और आज हम लोग नवंबर में है। मार्च एंड जब होगा तब मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा कि हम और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और हमारा रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो 37 पॉइंट समथिंग किलोमीटर आई थी, वो 45 किलोमीटर से ऊपर लेकर जाएंगे और गति बढ़ाएंगे। जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे उसकी गति बढ़ी है, जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बंद पड़े थे उस प्रोजेक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो उसको टर्मिनेट कर रहे हैं और उसकी अड़चनों को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। NHI में इसके ऊपर विशेष रूप से कमेटी है, NHI चेयरमैन, मेंबर और हमारे सेक्रेटरी मिलकर तुरंत निर्णय करेंगे। उसके बाद मैं बैंकों के साथ, बाकी लोगों के, राज्य सरकार के साथ मीटिंग लेता हूं और लगातार रिव्यू करता हूं और रिव्यू करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मैं आज सदन को और एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास अमेरिकन फंड, कैनेडियन पेंशन फंड, मैक्वारे जैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। पर इसके बाद हम रोड बनाएंगे तो हम छोटे गरीब लोगों से पैसे लेकर बनाने वाले हैं। उनको 6% से ज्यादा इंटरेस्ट मंथली हम बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे
और गरीब लोगों की इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में करके उनके सहयोग से अब हजारों करोड़ रुपए उनको देंगे, जिससे उनको ब्याज मिलेगा, फिक्स रिटर्न मिलेगा। और उस प्रकार की योजना भी हम बना रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा इस देश के सामान्य लोगों को होगा। जो विशेष रूप से डीपीआर है, उसके बारे में भी हमने काफी मेजर्स लिए हैं। वन टाइम फंड इन्फ्यूजन, ये जो बात प्रकाश जी ने बताई थी काफी प्रोजेक्ट अटके थे, उनको हमने मदद की है। उसके बाद रीपैकेजिंग कर रहे हैं, प्रीमियम का रीशेड्यूलमेंट कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंट क्लियरेंसेस कर रहे हैं, एग्जिट पॉलिसी फॉर इक्विटी इन्वेस्टर, इसको हमने अलाउ किया है, रिवैम्पिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसको किया है, मार्केट फ्रेंडली पीपीपी, हैम, ईपीसी, इसके डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए, इनोवेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस लाए, मोनेटाइजेशन, इसमें एनएसपी, टीओटी, इनवीट, एसपीवी ये लाया है, एलआईसी के लिए बोरोइंग अभी किया है, लॉन्ग टर्म पेंशन फंड से लिया है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।